Al Shifa Group of Hospitals is a modern and trusted healthcare center located on Chitu Road, Gujranwala. It's working under the supervision of Dr. Sarfaraz Ahmad Mughal. The hospital offers high quality medical services with experienced doctor, caring staff and advanced medical equipment. Bismillahirrahmanirrahim. Warm welcome all future doctors. Myself, Dr. Abia Tanveer. I am clinical psychologist, head of Happy Life Training Program. Happy Life Training Program ऐसा प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारी ऐसी रीज़न्स हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं हमारी सोसाइटी के, हम डिस्कस करते हैं, हम स्कूल्स में जाते हैं। अब क्योंकि बहुत अवेयरनेस आ गई है, पहले इतनी नहीं थी, मेंटल हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है। और एक जो टॉपिक जिस पे मैं बात करना चाहूँगी, वैसे तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, पर्सनल हरासमेंट, हरासा करना, खौफज़दा करना बच्चों को, डिफरेंट स्ट्रीट्स के बच्चे, स्कूल्स, कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं, और वो इतना ट्रॉमा, सदमा उससे गुजर रहे होते हैं और वो किसी को बता ही नहीं पाते। उन्हें ये पता ही नहीं था कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है, ठीक है। और हम उन्हें बताते हैं कि अब ये वक्त आ गया है कि सीख लें आपने नो कैसे कहना है, अपना खुद कैसे बचाव करना है, और आप भी हमारी टीम का जो है पार्ट बन सकते हैं, और आप आएँ और हम मिलकर काम करते हैं। बहुत शुक्रिया, अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू। After Dr. Abia Tanveer, I would like to call Dr. Amna कि वो आएँ और अपने प्रोग्राम से रिलेटेड वेलनेस सेंटर बेसिकली हमारा प्रोग्राम है और उसके बारे में वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू। Assalamu alaikum. Myself Dr. Amna Aurangzeb. I am a physiotherapist working here as a yoga trainer at Al Shifa Group of Future Hospital, and I am the head of Wellness Center. So here in Wellness Center, we treat patients and clients with physical, mental and spiritual well-being. We treat and heal patients with PCOS, obesity, depression and arthritis without the help of medication, but with the help of 5 different techniques: yoga, medicated yoga, Zumba, cardio and Sawana. All this happens with the help of our medical team that assess general assessment of patient, general medical assessment, general psychological assessment and general physical assessment, and then plan accordingly. So in the end, the conclusion of my topic is to convey my message and to aware you all, my future doctors, to spread this awareness as soon as possible so that everyone knows the importance of well-being. Thank you so much. Now I want to invite Dr. Kainat Shabir. She will highlight the basic concept of Al Nisa project. Assalamu alaikum and good afternoon everyone. Hopes we all are doing well. I'm Dr. Kainat Shabir and I am a aesthetic gynecologist here at Al Shifa Future Hospital, and I am working as the head of department of Al Nisa project. So basically Al Nisa is derived from Surah Nisa. It revolves around the woman. It has 2 main pillars that involves the breast cancer and happy marital life. The main motto of breast cancer is its early detection with help of self-examination to differentiate between normal and abnormal, and after that we will refer for the treatment to the nearest hospital. And second one is happy marital life. So the main motto of happy marital life is that to decrease the divorce rates and to help the couples. Our training program includes the medical doctor, physiotherapist, motivational speaker and clinical psychologist.
thank you from my side, and our main motto is that you spread this message to your nearby class fellows to help the breast cancer awareness. Thank you. Now I would like to call Dr. Sarfraz Ahmad Mughal to the stage to share the inspiring success story behind this mega project of Al Shifa Group of Hospital. He will also enlighten us about the latest developments in the medical field and how Al Shifa Future Hospital is playing a role in advancing health care in our region. Please clap for most respected Dr. Sarfraz Ahmad Mughal. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है और आपकी विज़िट का मकसद क्या है? इस प्रोजेक्ट का नाम आपने देखा फ्यूचर हॉस्पिटल है। फ्यूचर मीन आने वाली जो हमारा टाइम है, इसमें जो टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं जो आने वाले टाइम में आएंगी वो भी हम लेके आएंगे। अगर हम बात करें जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स हैं वो किस तरह काम करती हैं और जो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स हैं वो क्या कंसेप्ट है। अगर आप रूटीन में देखें, शुगर है, डायबिटीज़ है, तो हम उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हम मैनेज कर रहे हैं। वो एक टेबलेट से शुरू करता है और 5 साल के बाद उसका शापर इतना बढ़ चुका होता है। तो हमने क्या करना है, हम यहाँ पे डायबिटीज़ रिवर्स भी करते हैं। आपके वो चीज़ें रूटीन की जो आपकी मेडिसिन सर्जरी में ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, हम यहाँ पे सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर रहे, ट्रीट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम सब चीज़ों को जो रूट काज उसकी ढूंढ के उसको हम ट्रीट कर देते हैं, ऑटोमेटिकली बीमारी ख़त्म हो जाती है। तो आपकी विज़िट का मकसद क्या है कि आप सारे प्रोजेक्ट को वैल्यूड करें, इसको देखें, इसका इंटीरियर देखें, इसकी मैनेजमेंट को ऑब्ज़र्व करें और आने वाले टाइम में जब आपने मार्केट में एज ए डॉक्टर आके प्रैक्टिस करनी है तो आपका क्या स्कोप है। सिंपल MBBS और फिर उसके बाद क्वालिफ़िकेशन इम्प्रूव करना और फिर कैसे प्रैक्टिस करना। आज मेरी एज है 55 इयर्स और 35 इयर्स मैंने मेडिकल सारी एजुकेशन कंप्लीट की। हमें कहीं नहीं सिखाया जाता कि आपके मेडिकल एथिक्स क्या हैं, आपके जनरल एथिक्स क्या हैं, आपने क्लिनिक कैसे बनाना है, आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपने अपने आप को अपग्रेड कैसे करना है, आपने फ्यूचर प्लानिंग कैसे करनी है, आपकी लीडरशिप क्या है। बेसिकली एज ए डॉक्टर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं। बेसिकली हम भी उसी सिस्टम की प्रोडक्ट्स हैं जिस सिस्टम का आप आज बन रहे हैं। आज दुनिया में बहुत सारे प्रोफेसर्स जो हैं मेडिकल के, वो क्लेम करते हैं कि हमें आज तक जो पढ़ाया जाता रहा वो सारा गलत था। जो डिजीज़ की ट्रीटमेंट हमें पढ़ाई गई थी वो बहुत सारी गलत है, लेकिन हम वही काम स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, हम वही पढ़ा रहे हैं। जो आगे नए बैच आ रहे हैं वही पढ़ते जा रहे हैं। हम कुछ नया नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब चीज़ें चेंज हो चुकी हुई हैं। अब एक पैनाडॉल, अगर 3 लोग हैं, तीनों को टेम्परेचर है, मैं तीनों को पैनाडॉल देता हूँ, तीनों को वो पैनाडॉल डिफरेंट तरीके से अफेक्ट देगी। अब आने वाले टाइम में क्या होगा, कस्टमाइज्ड मेडिसिन बनेगी। आप आए, आपका DNA लिया जाएगा, उसी टाइम एनालिसिस करके उसी टाइम आपकी मेडिसिन जो है वो लैब में तैयार होके आपको डिस्पेंस की जाएगी। वो मेडिसिन आपके लिए हाईली इफेक्टिव होगी, वो मेरे लिए नहीं हो सकती। ठीक है, आपका नी का आर्थराइटिस है, फ्रोज़न फ्रीज़ हो चुका है, डॉक्टर ने कहा ये चेंज होना है। आपकी MRI लगी हुई है, उसमें AI है, वो उसी टाइम स्कैन करेगी, वो डिसीजन देगी कि आपका नी रिप्लेस होना है। अब हमारे पास 3 नी है, एक मीडियम, स्मॉल और लार्ज साइज़ का। अब मुझे ना मीडियम आ रहा है ना लार्ज आ रहा है, तो डॉक्टर क्या करेगा, वो यहाँ मीडियम डाल देगा या लार्ज डाल देगा, इसके अलावा तो ऑप्शन कोई नहीं है। वो जो फ्यूचर MRI आ रहा है वो आपको एग्जैक्ट साइज़ बना के वो आपको बता देगा ये नहीं है। फिर उसके साथ बायो प्रिंटर्स लगे हुए हैं जिसके अंदर हम स्टेम सेल भी डाल सकते हैं और कुछ और भी मटेरियल हम डालते हैं। वो आपका कस्टमाइज्ड नी उसी टाइम बना के दे देगा। आप कहते हैं कि मैंने ऑपरेट भी कराना है, वो आपको उसी टाइम ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करेगा जहाँ पे रोबोट्स लगे हुए हैं। वो हाफ एन आवर में आपका नी रिप्लेस करके आपको कहेंगे भाई साहब अब घर जाएँ गाड़ी चला के। डैट इज़ फ्यूचर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। मैं यहाँ पे बैठ के अपने ऑपरेशन थिएटर में रोबोटिक के साथ अमेरिका में सर्जरी कर सकता हूँ।
उसमें हार्ट सर्जरी भी शामिल है। तो ये आपका आने वाला टाइम है। हम इसके साथ किस पे काम कर रहे हैं? होलोग्राफी पे हम अल-शिफा वाले काम कर रहे हैं। होलोग्राफी क्या है कि मैं एज ए कंसल्टेंट इसी टाइम रियल टाइम में मैं अमेरिका में जाके मेरा इमेज वहाँ पे जाएगा, यूँ लगेगा कि जिससे मैं खुद खड़ा हुआ हूँ। पेशेंट को देखूँगा, उसको एग्जामिन करूँगा और उसी टाइम अपना डायग्नोसिस दूंगा कि इसको ये नहीं ये करते। मेरी सेकंड स्पेशलिटी स्टेम सेल में है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद एस्थेटिक में है। इंटरनेशनली बहुत सारे जो लैब्स हैं, साइंटिस्ट हैं हमारे साथ, इन कोलैबोरेशन है, उनके साथ हम मिल के काम कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हमारा एक प्रोजेक्ट है अल-निसा, सूरह निसा से हमने लिया, उसमें हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस करते हैं और इन हाउस और जो कॉलेज में जाके उसके ऊपर सेल्फ एग्जामिनेशन क्या है, नॉर्मल एबनॉर्मल क्या है, अर्ली डिटेक्शन पे काम करते हैं। साथ हमारा हैप्पी मैरिटल लाइफ है कि हम किस तरह जो बढ़ती हुई डिवोर्स को हम कम कर सकते हैं। तीसरा हमारा जो एक वेलनेस सेंटर है कि हम किस तरह बगैर दवाइयों के माइंड, सोल और बॉडी को हम बेहतर कर सकते हैं जी। तीसरा जो हमारा प्रोजेक्ट था हैप्पी लाइफ ट्रेनिंग का, हैप्पी लाइफ ट्रेनिंग इतना इम्पॉर्टेंट वर्ड है, अगर आप इस पर गौर करें। जो अल्लाह ने हमें ज़िंदगी सेहत दी है, उसके अंदर रहते हुए हम किस तरह खुश रह सकते हैं, उन चीज़ों को रिकग्नाइज कर सकते हैं। फिर इसके साथ हमारा जो इसका दूसरा सेगमेंट है वो है पर्सनल हरासमेंट का, कि किस तरह कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट को मदरसों के अंदर मुख्तलिफ वर्किंग प्लेस पे किस तरह हरासमेंट की जाती है। तो अल्टीमेटली एक पूरा एक विजन के तहत हमने सारा चीज़ें की। और एज ए डॉक्टर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जी वंस अगेन थैंक यू सो मच साद और आपकी टीम का कि आप आए, और होप आपको ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। First of all, I am cordially thankful to Dr. Sarfaraz Mughal and the whole Al-Shifa group of hospital team, organizing team and our today's host. इतना अच्छा हॉस्पिटल, इतनी ज़्यादा चीज़ें, इतनी एडवांसमेंट, ये मैंने भी नहीं एक्सपेक्ट की थी पहले। शायद आप में से भी किसी ने ना एक्सपेक्ट की हो कि गुजरांवाला के अंदर ये सब कुछ मिल रहा है। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह आज देख के सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करके बड़ी खुशी भी हुई है, और एक होप भी मेरा ख्याल है सब में डेवलप हुई है, कुछ बड़ा करने में, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने में और एफर्ट करने में। ये जो भी सारी इन्होंने स्ट्रगल की है, या जो इन्होंने सारा टाइटैनिक खड़ा किया है, प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है, ये हमारे सामने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि अगर हम कुछ भी करना चाहें हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं। बस एक छोटे से सर्कल से अपने आप को, छोटे सी सोच से अपने आप को निकाल कर ब्रॉडर व्यू लेना है, दुनिया को लर्न करना है कि वो किस साइड पे जा रही है। और इसके अंदर ये तो अब एक और अच्छी बात ये है कि ढूंढने से इस तरह के बंदे मिलते हैं कि जो या उनको साथ करनी पड़ती है अंडरस्टैंडिंग, या वो इतने बिज़ी होते हैं कि वो कह लें कि दिल नहीं कर रहा होता उनको दूसरों को गाइड करने का। तो ये एक हमारे लिए कह लें नेमत भी है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा थिंकिंग करें, वर्किंग करें, और जो हमारे पास सहूलत मैसर है इससे फ़ायदा हम लोग हासिल करके अपनी लाइफ में भी कुछ ना कुछ इस तरह का काम करके जाएं। और इसके अंदर एक जो सेशंस हैं या 1-on-1 मेंटोरशिप है, या इसके अलावा जो गाइडेंस है, जो भी जिसको भी जिस हवाले से चाहिए होगी, मुझे पूरी उम्मीद है डॉक्टर साहब अपने बेटों की तरह ही हम सबको गाइड भी करेंगे और इस हवाले से आगे सपोर्ट भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन का फीडबैक मैं यही दूंगा कि बहुत अच्छा सेशन था, कि एक सक्सेसफुल, एक अपने फील्ड के बेस्ट ऑफ द बेस्ट बंदे के साथ इंटरेक्ट करना, और उसका इतना वेलकमिंग वे में हमें टाइम देना, और पूरी तरह सारे प्रोसीजर्स एक्सप्लेन करना, शिफा कैसे शिफा ने शुरू किया और कैसे उनकी विद टाइम ग्रोथ हुई, और फिर इस तरह फर्स्ट ईयर के फ्रेशर्स और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को सारा इतना अच्छा टाइम देना और वेलकमिंग वे में एक्सप्लेन करना। और यही उम्मीद है कि आगे भी इस तरह हमें हेल्पिंग वे में लेके चलेंगे, और हमारे स्टूडेंट्स के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे खुलेंगी, और इंटर्नशिप्स वगैरह भी हमें ऑफ़र करेगी शिफा इस तरह। तो बहुत अच्छा सेशन था, और आई विल हाईली रिकमेंड शिफा और उनके प्रोसीजर्स और उनकी जो होलिस्टिक अप्रोच है उनके क्लिनिक्स की। और बाकी सर सरफराज मुगल का नाम तो गुजरांवाला में किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, एवरीवन नोज़ दैट ही इज़ द बेस्ट हेयर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ आज विज़िट से बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिली हैं।
जो मतलब कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ जिनसे हम अभी तक वाकिफ़ नहीं थे वो हमने इधर देखी और उनको ऑब्ज़र्व किया। और सबसे बड़ी चीज़ जो डॉक्टर सरफराज साहब उन्होंने हमें अपना बहुत कीमती वक्त दिया। और जो मुझे इस सेशन में जो नई चीज़ तो नहीं कहना चाहिए, जो मेरे लिए एक लर्निंग चीज़ थी वो ये है कि डॉक्टर साहब का जो इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि मतलब वो उन्होंने कहा कि जो भी मैंने सोचा है वो मुझे अचीव हुआ है। आमतौर पर हमारा यही आइडिया होता है कि मतलब हर चीज़ में हम इस्लाम को ही क्यों घुसा के ले आते हैं, तो अल्लाह ताला को लेके आते हैं, मतलब सोचते हैं यार नहीं इसमें नहीं होना चाहिए, इसमें मतलब मैं खुद करूँगा या जो भी होगा ना दुनिया पे या असबाब पे हम जो है ना वो फोकस करना शुरू हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब का ये जो नज़रिया है ये इसको मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ और हर किसी को मैं ये रिकमेंड भी करता हूँ कि उसका भी मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए अपने खुदा पे कि वो भी जो है ना अपने खुदा से मतलब इस तरह मनाजात और जो भी मांगना चाहे वो उसे मिले। तो बहुत शुक्रिया अलशिफा हॉस्पिटल का हमें यहाँ पे वेलकम करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। तो जिस तरह डॉक्टर सरफराज साहब ने बोला था कि सिर्फ आपने डॉक्टर नहीं बनना, ठीक है, आपने एक रोल मॉडल भी बनना है। आपने अपने क्लिनिक में या अपनी सराउंडिंग में किस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ। तो ऊपर आपने विज़िट के दौरान देखा ही होगा कि बहुत ही ज़्यादा वेल कंडीशन था और आपको एक एस्थेटिक किस्म का एक डिफरेंट किस्म का इन्वायरमेंट आपको देखने को मिला। आप इस बिल्डिंग के इंटीरियर वगैरह देखें तो वो बाकी क्लिनिक से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो इससे भी आप जब पेशेंट आता है तो उसको एक अच्छी वाइब आती है, अच्छी फीलिंग आती है। और बाकी बहुत अच्छा लगा मुझे विज़िट के बारे में इस विज़िट पे और नई चीज़ें देखने को मिली, जिस तरह ऑटोइम्यून डिजीज़ के ट्रीटमेंट वगैरह यहाँ पे स्टेम सेल्स के थ्रू, ठीक है, उसका मुझे पहले आइडिया नहीं था तो उसके बारे में जानने को मिला। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इधर आके मुझे पर्सनली बहुत खुशी फील हुई कि जो मैं इमेजिन करता था या चीज़ों के बारे में सुनता था आज मैंने वो रियल में वो चीज़ें देखी। और जो दूसरी चीज़ कि वो मैं डॉक्टर सरफराज अहमद साहब के बारे में कहना चाहूँगा कि वो एक रियलिटी में एक बहुत बड़े इंसान है कि जिन्होंने देखें कि कन्वेंशनल से हट के उनकी जो एक अप्रोच है कि उन्होंने एक हवा के ख़िलाफ़ आप समझ लें कि दिया जलाया कि एक जो कन्वेंशनल मेथड था डिज़ीज़ को ट्रीट करने का उससे हट के एक अल्टरनेटिव मेथड निकाला है लोगों की फलाह व बहबूद के लिए। और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको इस मिशन में कामयाब फरमाए। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जो सर की एक अचीवमेंट है, फिर उन्होंने मेडिकल नॉलेज के साथ जो बायो इंजीनियरिंग और बायो जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, बायोमेडिकल टेक्निक्स हैं, रोबोटिक्स की, उसका जो एक कोलैब किया है उससे एक डॉक्टर को जो है ना बहुत फ़ायदा होगा। लाइक एक अगर मैं एग्जांपल दूँ डेंटिस्ट की, तो मोस्ट ऑफ द जो बैक पेन है वो डेंटिस्ट सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं, ठीक है। तो अगर आप जो है ना अपने रोबोट को इतना आप हाईली उसको जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ करें कि एज ए डेंटिस्ट जो है ना वो काम कर सके, तो इससे जो डेंटिस्ट हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा, ताकि उनकी जो बैक पेन है या फर्दर इशूज़ है हर फील्ड के अंदर जो डिफरेंट जो डॉक्टर्स हैं इसमें उनको जो है ना वो हेल्प मिलेगी। थैंक यू। Al Shifa Future Hospital. We offer more than your imaginations.